Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to study about the refractive index. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था रिफ्रैक्शन, है ना, और उसके बाद हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दौरान हमने एक टर्म देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच वॉज टोटली न्यू फॉर यू. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इवन ये क्यों होता है और ये क्या बताता है. ठीक है, इट इज़ अ नंबर बट व्हाट इट रिप्रेजेंट्स वी विल बी लर्निंग दैट. एंड देन हम लोग देखेंगे कि यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किस तरीके से रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी में जो है कोई चेंज नहीं आता तो उसके हिसाब से फिर हम वेवलेंथ पे कैसे चेंज नाप सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ लिख सकते हैं. इवन वेलोसिटी पे हम लोग इन टर्म्स कैसे लिख सकते हैं. फिर हम लोग देखेंगे ग्लास स्लैब के जब ग्लास स्लैब होती है उससे किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है. ये आज के हमारे मेन सब टॉपिक्स हैं विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, इफ यू वांट DPP and study material you can access them through our Telegram channel. Alright, you can write the TTB 010 in the search box of the Telegram app. If you do so, then our channel appears in the drop down list. You can choose for class 10 and you can join that. Alright, that is the most important thing. You can access all the DPP study material along with the notifications of the video classes we are going to give. Alright, now see, this is a team which is going to help you a lot because this team is preparing all the things that is to be needed by you. That means we are giving you the quality lectures you deserve and we are totally making sure that each and everything should be reach up to you. That is the main thing of these video lectures. We are making you prepare for the school examination as well as the Olympiads. Either it is NTSC, NSCJS, right? And we are also delivering the content in the PRMO. Right, so basically all these video classes are free for you. You can watch these video classes, you can learn from these, you can crack all the examination goals you have set for yourself, and even you can share these video lectures to everyone so that every other person or every other one of your friends can study from these video classes and take advantage from this. Alright, that is the main thing. You should study first of all. You should just study, right? That is the main important thing. And in accordance to that, we have made these lectures free for everyone. So anybody can see that and learn from these video lectures. But in accordance to that, we have also prepared some packages for you all. To access those packages, you need to go on the website www.talkingtextbooks.in. So you need to go on that website. You are going to see two type of packages over here, the full package and the test series. Full package contains all the necessary things you need to crack any examination. Alright, that is the study material, alright, the comprehensive study material we are going to give you. That we have chosen a set of questions you need to do, you need to practice more and more so that you can get that level of the accuracy and fastness in you, right. फिर आप देख सकते हैं recorded and live classes. Recorded and live classes are free for everyone, so you are watching these. Alright. Homework submission feature. Homework submission is important as you are going to do the homework. You are going to submit that homework to us and we are going to see that. So it is also an important feature which can make you much more understanding of the concept. Next, you can see the bi-weekly quizzes. Bi-weekly quizzes are the things which you are required to do so every week. That means you are going to give the quiz twice every week. So that is must a thing that you need to do it more often. And definitely you are going to watch the lecture and then you will be attending the quiz, watch the lecture, attending the quiz. That would be the good series and you will be become familiar of the pattern, the questions asked from a concept, or maybe you get clear about which one is the actually you can say the weak topic for you and which one is the strong topic for you, right. Next, the periodic test papers. Now these periodic test papers are the most important thing because periodic test papers will let you know what is the final examination pattern you need to face. Alright, because अब जब फाइनल एग्जाम देने जाएंगे आपको पैटर्न पता नहीं होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, कितने क्वेश्चंस आपको कितनी देर में सॉल्व करने हैं. तो ये चीज़ें अगर आपको अनक्लियर रहेंगी तो आपका डर एग्जाम फियर जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है एग्जाम टाइम पर वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है. बट अगर आप क्या करेंगे, अगर आप पहले से ही उस पैटर्न से फैमिलियर हो जाते हैं तो इट वुड बी सो ईजी फॉर यू to sit on that examination desk and you will write all the paper with so much confidence. That is the most important step you can take. So make sure you get familiar with these and these periodic papers are for that only.
you can definitely get these periodic test papers, you can solve these periodic test papers now, and then after solving them you will become familiar of the pattern. Now you can give the test and you can definitely get your confidence boost up. That is the most important thing also. But if you are like the one which regular studies and you just need a test series to test yourself, then you can go for the test series. Test series में आपको periodic test papers, recorded live classes and bi-weekly quizzes, ये तीनों चीज़ें आपको मिलने वाली है. So basically ये जो सबसे important चीज़ है वो यही है that it depends on you कि भाई आपको क्या करना है. Either you want a whole year guidation, ठीक है, आपको पूरा जगह गाइडेंस मिले कि भाई कब आपको क्या करना है, धीरे धीरे हम टॉपिक पूरा कवर अप करते रहें थ्रू आउट द ईयर. So if you want that, you can go for the full package. And if you are the one who just want the test series, you want to test yourself, then you can go for the test series, right? So it's on you. You decide what you want to get. Alright, and if you are interested in buying it, you can remember my code CYLIFE so that you can get a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. And if you are like want to know about these packages, not interested in buying, but you want to know more कि how these can be helping you, so make sure that you call us on the number 919549041111. So if you call us on that number, you will be like getting resolved all your queries. That would be so good, right? So just promise ourselves that we will be watching the whole lecture and you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. That is a must thing to do, right? Because हमें क्या करना होता है, if you are fighting the NTSC, then that means कि भाई आपको क्या करना होगा, पूरा 9th का concept revise करना होगा, आपको 10th का concept revise करने होंगे, and that would be so hectic, right? बहुत ज़्यादा hectic हो जाता है. इस hecticness को ख़त्म करने के लिए आपके पास सिर्फ रिवीजन ही इकलौता ऐसा साधन है. आप रिवीजन करेंगे उसी दौरान तो आपको क्या रहेगा, जो कंसेप्ट आप अभी पढ़ रहे हैं वो भी रिमेंबर होगा, साथ ही साथ जो पहले पढ़ा था वो भी रिवाइज होता जाएगा, राइट? तो मेक श्योर दैट यू रिवाइज डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है. एटलीस्ट 1 hour a day, डू इट. ऑलराइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिफोर एग्जाम यू शुड डू इट. ऑलराइट, चलिए अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो वी आर गोइंग टू लुक अप व्हाट इज दैट. सो बेसिकली हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं. जैसे हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो होता क्या है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दूसरी क्वांटिटीज से कैसे इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट यू कैन सी द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, क्या होता है, कैसा होता है. वी विल गोइंग टू लुक ऑल द थिंग्स यू नीड टू नो, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लेटरल शिफ्ट. दीज 3 टॉपिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है. तो हम लोग उनको जो है 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं. ऑलराइट, अब हम आते हैं सबसे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज इट, है क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो मैं आपको बताती हूँ, हर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है. अब हम ये बात जानते हैं कि लाइट सिर्फ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में से जा सकती है, इसी वजह से हर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई एक लेट्स से एयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो देखिए, जब कभी भी लाइट एयर में से ग्लास में जा रही है तो कितना ज़्यादा उसका स्पीड कम होगा, आई मीन टू से कितना डिक्रीमेंट आएगा स्पीड में लाइट की, ये डिक्रीमेंट कौन डिसाइड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. अब अगर ग्लास में जा रही है लाइट, ठीक है, या फिर वाटर में एंटर कर रही है, तो ये जो बेंडिंग होता है, ये जो रिफ्रैक्शन होता है, ये भी तो किसी की वजह से होता है. ये इसी की वजह से तो होता है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है. एयर में से जब लाइट आ रही होती है उसका कुछ और स्पीड होता है, फिर जैसे ही वो वाटर में एंटर हो जाती है तो उसका स्पीड कुछ और होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन स्पीड वो अपना पाथ बेंड कर लेती है, लाइट अपना पाथ बेंड कर लेती है. लिटरली सही बात है ये, बिल्कुल. अब यहाँ पे ये देखना है कि लाइट कितना बेंड होगी, ये फैक्टर क्या और कैसे डिसाइड होता है कि लाइट जब एयर में से वाटर में जा रही है तो वो कितना बेंड होगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो आपको ये बताएगा कि भाई जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो वो कितना बेंड होगी, अपना पाथ कितना चेंज करेगी. ये यू कैन से ये फैक्टर बताने के लिए हर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है.
सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर किसी मटेरियल का, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है, अलग अलग होता है। उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप बोल देंगे भाई इतनी कम हो जाएगी इसकी लाइट, तो इसका मतलब ये इतना बैंडिंग यहाँ पे होगा। सो नाउ यू कैन गेट दी मैग्नीट्यूड, आप नंबर देख पाएंगे कि भाई इतना बैंड होगा, इतने एंगल से बैंड हो रही है, इतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ यू कैन लुक अप टू द एक्चुअल नंबर्स हियर, and that because of the refractive index. Now you know the refractive index, it is you can say a number which decides the you can say the magnitude और कितना ज़्यादा जो है बेंड होने वाली है लाइट, ये आपको बताने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर होता है। ठीक है, ये हर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है। यू कैन राइट द डेफिनेशन हियर। देखिए, in optics the refractive index of a material is a dimensionless, remember it's just a number, so it is dimensionless, ठीक है, number that describes how fast light travels through the material, उसका speed कितना होगा, कितना चेंज हो जाएगा और कितने एक्सटेंट तक लाइट बेंड हो जाएगी, दैट इज द मेन थिंग। अब आप मुझे बताइए, एयर में से अगर वाटर में लाइट जा रही है, एयर से जाती हुई वाटर में लाइट जा रही है, तो वाटर में जब लाइट जाएगी उसका कितना स्पीड कम होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, कितना ज़्यादा उसका स्पीड कम हो रहा है, कितना बेंडिंग हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जिम्मेदार। ठीक है, दैट इज व्हाई वी हैव सेड दैट। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमेशा इसका, ये तो सिर्फ एक नंबर होता है, बट इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग टर्म्स में। जैसे हम स्पीड जो है इन अ मीडियम, स्पीड इन वैक्यूम, इन दोनों से रिलेशन में, इन टर्म्स ऑफ दो स्पीड्स हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम वेवलेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ के उसमें इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स में। सो लेट्स सी दैट हम किस तरीके से इसको स्पीड में हम लोग किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फॉर अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, यहाँ पर हम वेवलेंथ फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज क्या है, वेवलेंथ फिक्स कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, गिवन वेवलेंथ, हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, may be defined as the ratio of speed of light in vacuum to its speed in that medium। मतलब अगर आपको वैक्यूम में लाइट की स्पीड पता है और आपको वैक्यूम में के बाद किसी मीडियम के अंदर, जिसके अंदर लाइट एंटर हो रही है, उसका अगर आपको स्पीड पता है कि भाई उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है, देन ओनली यू कैन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाउ? बाय डिवाइडिंग दैम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में कितनी स्पीड है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में कितनी स्पीड है। इफ यू नो द स्पीड, बट रिमेंबर हियर द वेवलेंथ इज शुड बी द सेम। ठीक है, एक गिवन, किसी गिवन वेवलेंथ के लिए अगर हम बात करें तो अगर आपकी उसी वेवलेंथ का आपको स्पीड पता है वैक्यूम में, उसी वेवलेंथ का आपको स्पीड पता है मीडियम में, इफ यू नो दैट, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द refractive index. This is called mu. ठीक है, mu, this is called mu, and this is the thing, or you can say the symbol by which we are going to describe the refractive index. अब देखिए c, c क्या होता है, c is the velocity of light or the speed of light। ठीक है, लेकिन कहाँ, वैक्यूम में। तो रिमेंबर दैट, आप जब मैं कभी भी मैं सी को लिखूंगी, स्मॉल सी, दिस इज स्मॉल सी, ऑलराइट, रिमेंबर दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सी हियर, दैट मीन्स इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑलवेज। ठीक है, सो अब आपको अगर सी पता है, जो कि हम सभी को पता है, 3 × 10⁸ लाइट के बारे में पता है, बट इफ वी ऑल्सो नो दिस वी हियर, अगर हमें किसी मीडियम के अंदर स्पीड पता है लाइट की, देन वी कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसके अंदर लाइट जाने वाली है या फिर जा रही है। ठीक है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखिए अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, मान लीजिए आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, आपको ये वैल्यू पता है वैक्यूम की के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो आपको पता है, इफ यू नो दीज टू क्वांटिटीज देन यू कैन कैलकुलेट दिस ऑल्सो। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एयर में जाने के बाद या वाटर में जाने के बाद या ग्लास में जाने के बाद अगर आपको इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, देन यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो रिमेंबर टू मेक श्योर यू नोट दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट करना है आपको, फटाफट से नोट कर लीजिए, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड।
ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम एक और चीज देखते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या होता है? तो सी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर एक्चुअली एक ऐसा हम लोग टर्म बोल देते हैं, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बता रहे होते हैं किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का, बट इन टर्म्स ऑफ द वैक्यूम, जब हम किसी वैक्यूम कंपैरिजन में अगर हम ऐसा कर रहे होते हैं तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। जैसे एयर के लिए म्यू ऑफ एयर with respect to vacuum is 1, mu of glass with respect to vacuum is 3/2. so ये जो नंबर 3/2 1 है, ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, and that is why these are the absolute refractive index. ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए, अभी हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखा है वैल्यू, उसको हमने स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में देखा, उसके टर्म्स में हमने उसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है, स्पीड की टर्म्स में। अब हम उसको वेवलेंथ की टर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। सो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। सो देखिए, हमें एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सभी को पता होनी चाहिए कि कभी भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। रिमेंबर, रिफ्रैक्शन हमने इसको डिस्कस किया था कि ऐसी क्या क्या क्वांटिटीज होती हैं जो बदल जाती हैं, ठीक है, और क्या क्या ऐसी क्वांटिटीज हैं जो नहीं बदलती हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऐसी क्वांटिटी होती है जो लाइट की चेंज नहीं होती। अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तभी भी चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है म्यू वो रिमेन सेम रहती है, चाहे कोई भी मीडियम से कहीं कहीं जाए। सो इट रिमेन सेम। कब? जब लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसी के बेसिस पे हम पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे। वी विल बी राइटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पर ये जो C है, द स्पीड, ठीक है, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। फॉर्मूले मैं आपको बताती हूँ, आपको वो फॉर्मूले से रिमेंबर हो जाएगा कि भाई ये टर्म कैसे आया। देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ। स्पीड ऑफ वेव, जो स्पीड ऑफ वेव होता है वो क्या होता है, दैट इज वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है, और हम इसे लिख देते हैं v। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव, उसको हम वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला कहाँ से मिलता है, साउंड चैप्टर से। इफ यू हैव रेड साउंड चैप्टर देन यू कैन गेट दिस फॉर्मूला, पता होगा आप सभी को, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनको मैं अभी बता देती हूँ। यू कैन यूज दिस फॉर्मूले से आप ऐसा बता सकते हैं स्पीड, किसी भी वेव की स्पीड, ठीक है, किसी भी वेव का वेवलेंथ और उसका फ्रीक्वेंसी इस तरीके से इस फॉर्मूले से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, इनटू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये इसी तरीके से मीडियम के अंदर जो स्पीड होगा किसी भी लाइट का, ठीक है, वो क्या होगा फिर wavelength of the light in that medium multiplied by the frequency। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहता है, so we can cancel out, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कौन, वेवलेंथ। तो देखिए, आप यहाँ पर म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको वेवलेंथ इन वैक्यूम एंड वेवलेंथ इन मीडियम आपको पता हो तो, ठीक है। अगर आपको ये पता चलता है, आपको ये दोनों वैल्यूज पता होती हैं, यू कैन कैलकुलेट the refractive index. So this is how we represent the refractive index in terms of wavelength of the light, ठीक है, in that different mediums. The refractive index of a medium may be defined as the ratio of wavelength of light in vacuum to its wavelength in that medium, ठीक है। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे फटाफट से नोट करें।
ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने वेवलेंथ के टर्म्स में जो है उसको देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें, लेकिन टू मीडियम्स की बात करें, डिफरेंट मीडियम, नॉट टॉकिंग अबाउट द वैक्यूम बट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक एयर एंड वाटर, वाटर एंड ग्लास, ये दो मीडियम्स की बात करें तो क्या होगी, अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, ठीक है, उस वक्त यहाँ पर हम इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलेंगे। यहाँ पर क्योंकि वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए टू मीडियम्स हैं, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, तो यहाँ पे दो मीडियम्स की बात कर रहे हैं। अगर इन दोनों मीडियम में से एक भी वैक्यूम होता तो ज़रूर हम एब्सोल्यूट बोलते, बट क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, टू अलग अलग मीडियम्स हैं, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक दूसरे के रिलेशन में, लाइट जो है वो ग्लास का वाटर के साथ रिलेशन में, या फिर एयर का ग्लास का, ठीक है, या फिर एयर वाटर, इस तरीके के जो मीडियम्स हैं, जब व्हेन वी टॉक अबाउट सच टाइप ऑफ पेयर्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब यहाँ पे जो दो मीडियम हैं, दीज आर टू डिफरेंट मीडियम, नॉट वैक्यूम एंड अ मीडियम। ठीक है, तो ये आपको पता चला। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब बोला जाता है जब हम किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे होते हो बट विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर हम किसी भी दो मीडियम की बात करें कि भाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज दिस, ठीक है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन टू mediums here, right? That is why the refractive index of medium 2, the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. अब यहाँ पे ये unknown भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, unknown हो सकते हैं, ठीक है, is defined as the ratio of speed of light v1 in the medium 1 to the speed of light in medium 2 and is denoted by 1 mu 2. तो this is said by, इसको हम क्या बोलेंगे, आपको पता है 1 mu 2 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, पीछे जो नंबर लिखा होता है ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, आगे जो नंबर लिखा हुआ विद रेस्पेक्ट टू 1, with respect to medium 1. So अगर कभी भी इस तरीके से लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1. तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना होता है, टू सेकेंड मीडियम का हम बता रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C/V हम लोगों ने लिखा था, ठीक है, यहाँ पर जो हम देख सकते हैं वो एक्चुअली में मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात करते हैं। अगर यहाँ पे वैक्यूम मीडियम 1 होता है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, वैक्यूम अगर मीडियम 1 रहता है और ये मीडियम 2 रहता है, ठीक है, देन वी कैन डू दैट, राइट। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज इट इज वैक्यूम 2, राइट, सो वी कैन डेफिनेटली राइट इट एज लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग, यहाँ पे हमें जो देखना होता है। इवन यू कैन से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एक यूनिटलेस है और यू कैन से दोनों की क्वांटिटीज यूनिट्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है दोनों क्वांटिटीज की, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली से दैट, ऑलराइट। तो लेट मी राइट दैट अगेन, ऑलराइट। तो यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं एक बार, ऑलराइट। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये चेंज होने की संभावना रहती है। तो फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड आप देखिए वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, किस वेवलेंथ की लाइट आप यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई वो कितना बैंड होगी कितना नहीं। टेम्परेचर,
टेम्परेचर की वजह से भी मतलब जो है डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इट लाइक गिविंग अ डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, इट कैन हैपन। फिर देखिए नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, आसपास का मीडियम लेट्स से एयर, उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। तो दैट इज द मेन थिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये एक इकलौते किसी मीडियम का नहीं होता, इट इज लाइक कंपैरिजन ऑफ द टू मीडियम ऑलवेज। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां पर भी इवन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम बात करते हैं वहां पर भी हम ये बात बोल रहे होते हैं कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो वहां पर भी ये जो विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है ये एक्चुअली एक किसी इकलौते मीडियम की बात नहीं होती, यहाँ पे हमेशा यू नीड लाइक टू मीडियम्स, हमेशा ही चाहिए होते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, है ना। तो ये जो है ये एक पेयर ऑफ द मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक है, ये अकेले का नहीं है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी एंगल पे लाइट को फॉल करवा सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, तो इट्स ऑन यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फिजिकल मतलब क्या है, क्या यूज क्या है, इसका क्या यह चीज रिप्रेजेंट करता है व्हेन वी टॉक अबाउट दैट। तो ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन देता है, कितना बैंडिंग होगा इस चीज का हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एक तरीके से उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वही हो जाता है। The value of refractive index gives information about the direction of bending of refracted ray. कितना बेंड होगी और फिर किस डायरेक्शन में जाएगी, ये डायरेक्शन पता करने के लिए, ये एंगल पता करने के लिए, बैंडिंग पता करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन, राइट। इट टेल्स वेदर द रे विल बेंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये भी ये चीज बताती है कि भाई जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी। ये डिसीजन भी कौन लेता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा है कम है उसके हिसाब से इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट, राइट। उसके अलावा देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू दैट इन द गिवन मीडियम। तो यहाँ पर जब कभी भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड तो चेंज होती ही होती है, राइट। स्पीड चेंज के साथ साथ कितना स्पीड हो रहा है, कितना बैंडिंग हो रहा है और कितनी स्पीड चेंज होगी, ये चीज भी कौन डिसाइड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये इसका सिग्निफिकेंस है। जस्ट बिकॉज इफ यू नो दिस नंबर, इफ यू नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू कैन टेल द डायरेक्शन, भाई कितना बैंडिंग होगा, यू कैन टेल द स्पीड, डेफिनेट सी बात है, राइट। तो देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, अगर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखिए वो 3/2 है ग्लास का, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in glass to that vacuum is 2:3, right, and speed of light in glass is 2/3 of its speed in vacuum. That is so much easy, right. 3/2 यहाँ पर बोला गया, अगर refractive index जो है वो 3/2 है और हमने क्या बोला था, it is with respect to vacuum, right. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, कई बार वैक्यूम में जितना स्पीड था उसका कितना टाइम्स हो गया, 2/3 टर्म्स हो गया, right. That is the most important thing. You can see here in that vacuum is 2/3, 2:3, और द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2/3 ऑफ इट्स स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में जितनी स्पीड थी उसका 2/3 अब ग्लास में है, तो यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट दैट, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मिलता है। आप बता सकते हैं किसी एक मीडियम के अंदर उसका स्पीड अप कितना हो गया है इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, लाइट का स्पीड इन कंपैरिजन टू वैक्यूम किसी मीडियम में कितना हो गया है, ये आप पता कर सकते हैं। कितना बेंडिंग होगी लाइट, अवे होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कितना बेंड होगी, ये चीज आप बता सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यू कैन नोट दिस डाउन।
ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको भी हम किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। ये कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आप लोगों ने स्विमिंग पूल तो देखा ही होगा, ये जो स्विमिंग पूल का आप देख पा रहे हैं फोटो, इसके अंदर भी आपको ये एहसास होगा कि इस स्विमिंग पूल का जो बेड है, मतलब जो बॉटम लेयर है, जो इसका एंड है, वो ऊपर उठा हुआ है। आपको हमेशा ऐसा लगता है, डेफिनेट सी बात है, और अगर लगता है तो बिल्कुल सही लगता है, इट्स टोटली नॉर्मल बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सिर्फ इस स्विमिंग पूल में ही नहीं बल्कि हर एक जगह पे होता है जहाँ पर भी पानी भरा रहता है। आप किसी कंटेनर में पानी भरिए, अभी आप चेक कर सकते हैं, आप किसी स्टील के ग्लास में या फिर किसी भी ग्लास में आप पानी भी भरिए, आपको हमेशा उसका जो पेंदा है वो हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। आपको उसका जो बेस है वो ऊपर उठा हुआ दिखेगा। आपको रियल डेप्थ की जगह आपको एक अपेरेंट डेप्थ नजर आएगी। इसका मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इसका डेप्थ कम है, बट एक्चुअली में जब आप उसे पीने लगोगे तो आपको लगेगा नहीं, इसका डेप्थ तो काफी ज्यादा था। दैट इज द मेन थिंग एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही है। सो व्हेनेवर वी ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल और अ टैंक ऑफ क्लियर वाटर, वी फाइंड दैट द बॉटम अपीयर्स टू बी रेज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब द अपैरेंट डेप्थ इज लेस एज कंपेयर टू इट्स रियल डेप्थ। असल में इसका जितना गहराई होनी थी या फिर है वो हमें नजर नहीं आती। हमें तो उसकी अपैरेंट डेप्थ नजर आती है जो कि कम होती है। हमें लगता है ये कम गहरा है, बट जब एक्चुअली में हम जाते हैं तब हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा गहरा था। Right? This is because of refraction, and let's see what it is doing like. The extent to which the bottom appears to be raised depends upon the value of refractive index of the refracting medium. अब यहाँ पर कि भाई कितना हमें दिखाई देगा पानी का सरफेस, पानी में जब हम पानी में से देख रहे होंगे तो हमको जो बेस है वो कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, वो कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। सो बेसिकली ये भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताएगा। तो देख लेते हैं कैसे, किस तरीके से, क्या चीज से हम लोग इस रिप्रेजेंट कर पाते हैं, देख पाते हैं, वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और पता करेंगे कि क्या सचमुच ऐसा है। तो देखिए ये है एक टैंकर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए ये जो आई देख रही है उसे यहाँ पे बेस दिख रहा है, ये असली बेस है, रियल डेप्थ है। ठीक है, दिस इज द रियल डेप्थ पूरा, P से लेके O से लेके P तक पूरा का पूरा रियल डेप्थ है। पर इस आई को नजर आती है ये डेप्थ यहाँ पे, उसे सिर्फ इतना ही गहरा दिखाई देता है, उसे सिर्फ इतना ही गहरा दिखाई देता है OP डैश। ठीक है, उसे इतना ही गहरा दिखाई देता है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, उसे जो बेस है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, उसे P डैश तक दिखाई दे रहा है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं लाइट रे आएगी, ठीक है, एंटर हो रही है लाइट रे, व्हेन इट इज नॉर्मल एंटर होती है, सो इट विल गो बैक लाइक दिस। ठीक है, वैसे चल जाएगी। बट एज यू कैन सी हियर, यहाँ से लाइट रे आ रही है, इस बेस से लाइट रे आती है और बाहर चली जाएगी जो कि आईज में जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लाइट रे ऊपर आ रही है, यहाँ से लाइट रे ऊपर आ रही है। नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो यहाँ पे देखिए इस जब हम इस लाइट रे को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे उठा हुआ आई को दिखाई देगा, बेस यहाँ तक दिखाई देगा लाइट रे को। ठीक है, असल में है वो P तक, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस N2 पे, N1 N2 इज द नॉर्मल हियर, दिस I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज टेकन एज द रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो बाय ऑल्टरनेटिंग एंगल्स यू कैन सी दिस इज ऑल्सो आई, राइट। मैं यहाँ पे इसे लिख भी देती हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द एंगल्स हियर। यू कैन सी एंगल PQN2, देखिए PQN2, दिस एंगल PQN2 इज आई हियर। ठीक है, N1QR इज R, N1QR इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों चीजें तो हमें पहले से पता थी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, दूसरे एंगल्स भी पता कर लेते हैं। देखिए एंगल यहाँ पर होगा एंगल P डैश P Q। ठीक है, P डैश P Q, तो ये वाला जो एंगल है दिस विल बी इक्वल टू एंगल PQN2 यानी कि एंगल I। रीजन क्या होगा, alternate interior angles।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z फॉर्म कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ से P डैश P Q और P Q and 2 ये Z फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज वाई बोथ दीज एंगल्स विल बी इक्वल। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, राइट दोनों बराबर होने चाहिए, तो दे विल बी लाइक इक्वल टू I, ठीक है, वो दोनों I के बराबर होंगे। चलिए उसके अलावा हम लोग और भी बात बता सकते हैं दैट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एंगल R, that is like this angle and this angle, both are the, you can say the complementary angles, right, that is why they are like this, ठीक है, हम वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। So we can also write here angle O P dash Q, O P dash Q, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, N1 Q R के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने एंगल्स पता कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू थिंग्स हियर। यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, देखिए रिफ्रैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मीडियम 1 है क्योंकि लाइट कहाँ से जा रही है, वाटर से जा रही है, तो दिस इज इंसिडेंटिंग लाइट, लाइट यहाँ से जा रही है और बाहर जा रही है, तो 1 से लेके 2 में जा रही है, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 1 और 2 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम अपना हटा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड किया डेंसर मीडियम 2 एंड डेंसर मीडियम 2। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि भाई जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं कुछ ये refractive index of air with respect to water because it is going into the air, एयर में जा रही है इसीलिए एयर का refractive index with respect to water। तो यहाँ पे क्या होगा, sin I अपॉन sin R, स्नेल्स लॉ को यूज करते हुए we can write this by स्नेल्स लॉ। यहाँ पर जो है वाटर, ठीक है, यहाँ पर refractive index of air with respect to water, ठीक है, जो कि होगा sin I अपॉन sin R। यहाँ पर अगर मैं दोनों को चेंज कर दूं, यानी कि यहाँ पर अगर हम क्या करें, इफ आई वॉन्ट टू राइट लाइक विद वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर अगर मुझे पता करना है तो मैं इसे क्या कर दूंगी, इन्वर्स कर दूंगी, साइन आर अपॉन साइन आई लिख देंगे, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया, आई विल बी टेलिंग यू, बट बिफोर दैट नोट दिस डाउन, इसको पहले नोट करो फिर हम आगे देखते हैं। ऑलराइट, चलिए अभी हमने ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली है, राइट, तो लेट्स मूव ऑन, हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली में हम दो ट्राइंगल्स में से जो है साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ओ पी डैश क्यू, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ओ पी डैश क्यू, ओ P डैश Q। इफ आई वॉन्ट टू राइट द साइन R, यहाँ पे मुझे R लिखना है फ्रॉम दिस, है ना, साइन R की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो साइन R क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। इस एंगल के लिए ये जो एंगल आप देख रहे हैं ओ पी डैश क्यू, ओ पी डैश क्यू, ये जो R एंगल है यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ओ क्यू, सो इट इज ओ क्यू, ठीक है। और यहाँ पर हाइपोटेनस क्या होगा, P डैश Q, राइट, सो इट इज डिवाइडेड बाय P डैश Q। तो हमें साइन R की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल जो कि पूरा है, पूरा बेस तक, रियल डेप्थ तक जो है, दैट इज OPQ। इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें OPQ, ठीक है, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं OPQ की, तो यहाँ पर हमें साइन आई की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन
आई की वैल्यू लिखेंगे अगेन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर वुड बी ओ क्यू अगेन एंड द हाइपोटेनस इज पी क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है, अब हमने ये दोनों वैल्यूज निकाली, साइन आर, साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल ली। हम लोगों ने जस्ट अभी इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था, ये वाली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं वाटर ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो मुझे चाहिए साइन आर अपॉन साइन आई, है ना। तो लेट्स डू इट, साइन आर अपॉन साइन आई लिखते हैं। तो देखिए, refractive index of water with respect to air is going to give you sin r upon sin I। sin r ये रहा वो वैल्यू sin r, यानी कि ओ क्यू डिवाइडेड बाय पी डैश क्यू। फिर बड़ा वाला डिवीजन के लिए sin i ओ क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। इन दोनों वैल्यूज को मैंने सिंपली यहाँ पुट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ क्यू से ओ क्यू कैंसिल हो जाएगा, सेम ही चीज है। और यहाँ पर आ जाना चाहिए पी क्यू डिवाइडेड बाय पी डैश क्यू। ठीक है, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी डैश क्यू, इतना आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू और डिवाइडेड बाय पी डैश क्यू, अगर यहाँ के जो एंगल्स हैं दैट इज एंगल आई और एंगल आर बहुत 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 छोटे हो जाएं, तो ठीक है, इफ एंगल आर एंड एंगल आई आर वेरी स्मॉल, ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये छोटे हो जाएंगे तो जो पी क्यू है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पी क्यू है ये OP के बराबर हो जाएगी जब एंगल बहुत छोटे हो जाएंगे। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, OP, एंड यहाँ पर P डैश Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, OP डैश के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पर P डैश Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, OP डैश के बराबर हो जाएगा। कैन यू सी दिस वैल्यूज है, यहाँ पे जो वैल्यूज हम इनमें डायरेक्टली पुट कर देंगे। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो हमें अभी के वैल्यूज मिले हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, OP डिवाइडेड बाय OP डैश। अब आप देखिए OP यानी कि ये पूरा थिंग, ये तो पूरा रियल डेप्थ है, सो वी कैन राइट हियर OP एज रियल डेप्थ, और OP डैश जो है वो आ रही है अपैरेंट डेप्थ। So basically, if you know the apparent depth, if you know the real depth, then you can calculate the refractive index। और अगर आपको refractive index पता हो, refractive index of water with respect to air या फिर any liquid जो कि अंदर fill हो, ठीक है, अगर आपको वो refractive index पता हो तो आप क्या देख सकते हैं, real, यहाँ पे देख सकते हैं real depth divided by apparent depth, पता कर सकते हैं आप लोग, right? तो यहाँ पे देखिए, अगर जैसे आपको real depth पता हो किसी भी स्विमिंग पूल की, रियल डेप्थ अगर आपको पता हो और आपको पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना ऊपर दिखाई देगा जो स्विमिंग पूल का बेस है आफ्टर फिलिंग इट विद द वाटर, कितना आपको दिखाई देगा, इतना ऊपर आपको दिखाई देगा, आपको पता चल जाएगा, सिंपली यू कैन डिसाइड दैट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए ये आपको ईजिली कैलकुलेट कर सकता है। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को बहुत सारे टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, वेवलेंथ का टर्म हो गया, स्पीड का टर्म हो गया, ठीक है, और इवन डेप्थ में भी, रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, उसमें भी रिप्रेजेंटेड कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग, हम लोगों ने इतने सारे रिप्रेजेंटेशन कर लिए। नाउ यू नो अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली। ठीक है, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। ऑलराइट, सो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज का मेन जो है टॉपिक वो हमने आज स्टडी किया। ग्लास स्लैब वाला जो टॉपिक है वो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस कैसे होते हैं, वो सब हम लोग देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, सो इसको तो हम लोगों ने देख लिया, 3 तरीके के फॉर्मूले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मिल गए। नाउ यू कैन से दैट कि स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके टर्म्स में आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, वेवलेंथ के टर्म्स में कर सकते हैं और डेप्थ की टर्म्स में कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट वाज इट इन दिस लेक्चर, लेट्स एंड इट, फटाफट से एंड कर लेते हैं हम इसे। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.